Hello, students. This is Sandeep Tiwari from Rudraksh Study Channel. I'm going to tell you the summary of the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. This is a story of two tribal Armenian boys who belong to the Garoghlanian tribe. For their family, even in times of extreme poverty, nothing could match the importance of honesty. They never did anything wrong and never lied or never even stole anything. The story talks about an incident that revolves around two cousins, Aram, who is 9 years old, and Maurad, who is 13. The world for Aram at that time seemed to be a delightful and extremely joyous yet mysterious dream. People believed in every imaginable kind of magnificence. Maurad was considered to be crazy by everybody he knew. The story opens with Maurad coming to Aram's house at 4 in the morning one fine day. He tapped on the window to Aram's room. When Aram looked out of the window, he was taken aback and startled to see Maurad riding a beautiful white horse. In fact, he was so dazzled that Maurad had to say, "Yeah, it's a horse. You are not dreaming." All this was too unbelievable because Aram knew that they were too poor to be able to afford to buy a horse. The only way Maurad could possess it could be by stealing. They were too honest to lie and yet too crazy to ride a horse. Thus, they kept the horse for 2 weeks, enjoying its ride in cool air and singing to their heart's content on the country roads. They hid it from the rest of the world by keeping it in a barn of the deserted vineyard. Meanwhile, Aram came to know that the horse was stolen from John Brive. They planned not to return it so soon, although it pricked their conscience to steal, which was completely their ethics and tribal norms. One fine day, they came across John, the farmer. Such was the boy's family, famous for their honesty, that the thought of his horse being stolen by the boys never crossed John's mind. He was just amazed and dazzled at the resemblance and said, "I'd swear it's my horse if I did not know your parents." This moving experience led the boys towards John's vineyard the next morning. They left the horse in the barn after patting it affectionately. Later, that based on day, John seemed to be very pleased and shared the news of return of his horse with Aram's mother. The story teaches us the importance and necessity of honesty even in the face of greed and passion. Now students, I will tell you the same story in Hindi. Now let's start. आरम और मुराद दो चचेरे भाई थे। आरम 9 वर्ष का और मुराद 13 वर्ष का था। मुराद बहुत सक्रिय तथा उत्साही लड़का था, पर उसे सभी लोग सनकी कहा करते थे। दोनों को ही घुड़सवारी का बड़ा शौक था। वे गारोग्लानियन परिवार के थे तथा वे इतने निर्धन थे कि घोड़ा नहीं खरीद सकते थे।
पर उनका परिवार अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात था। उन्हें इस बात पर बहुत गर्व था कि जो मज़ा सही काम करने में आता है, किसी को न ठगने में मज़ा आता है, चोरी न करने में मज़ा आता है, वह मज़ा और कहीं नहीं मिल सकता। वे लोग आर्मीनिया के निवासी थे। गर्मी के एक सुबह मुराद आरम के घर आया और उसकी खिड़की को थपथपाया, उसे जगाया। आरम बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर देखा। उसने मुराद को एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर सवार देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपनी आंखें मींची कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुराद ने घोड़ा खरीदा या मांगा है। एक ही अन्य रास्ता बचा था कि मुराद ने इसे चुराया हो, पर इस बात पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ईमानदारी उनके परिवार के खून में थी। परिवार का कोई सदस्य चोर नहीं हो सकता था। मुराद ने आराम से बोला, जल्दी से बाहर आओ, यदि घुड़सवारी करने का आनंद लेना चाहते हो तो। आरम को खुशी भी थी और डर भी। उसने भाई से पूछा, घोड़ा कहाँ से चुराया है? पर उसे कोई उत्तर नहीं मिला। स्पष्ट था कि मुराद ने घोड़ा चुराया था। आरम को घुड़सवारी करने का लालच आ गया और उसने स्वयं को समझाया कि घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराना तथा किसी का धन चुराना, ये दोनों बातें अलग हैं। वे दोनों भाई घोड़े के दीवाने थे। उन पर चोरी का आरोप तभी लग सकता था जब वे घोड़े को बेचे। आरम ने कपड़ा पहना और छोटे भाई के पीछे घोड़े पर बैठ गया। उनके घर के पिछवाड़े से एक ग्रामीण सड़क शुरू होती थी, जो कि फलों के बागीचे से होती हुई छोटे छोटे पोखरी, तालाब, अंगूर की बेलों से होता हुआ एक बड़ा ही लंबा चौड़ा मैदान था। वहाँ पर वो दोनों गए और घोड़े को दौड़ाने लगे। मुराद ने जोर जोर से गाना भी शुरू कर दिया। परिवार में सनकी होने की पुष्टि यहाँ पर पूरी हो गई। मुराद ने सनकी होने की पुष्टि कर दी और इसको यह विरासत में भी मिला था। उनके अंकल खुसरो भी सनकी थे। वे गुरु स्वभाव के चिड़चिड़े और बेसब्र इंसान थे। वे किसी को बोलने नहीं देते थे। उनका तकिया कलाम था, There is no loss in it. Please pay no attention to it. कोई बात नहीं, इस पर ध्यान रखिए। एक बार उनके घर को आग लग गई और वो नाई की दुकान पर गए थे। उनका बेटा आरक उन्हें आग की सूचना देने गया, पर वो सदा की भांति चीखे नहीं। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, नुकसान की कोई बात नहीं। मुराद ने अपने पिता जुराब की विरासत में कुछ कुशलताएं ग्रहण की थी, पर मुराद ने तो अंकल के स्वभाव का प्राकृतिक रूप से रूपांतरण पा लिया था। दोनों भाइयों ने घोड़े को दौड़ाने की पूरी छूट प्राप्त कर ली थी। अंत में मुराद ने आरम को नीचे उतरने के लिए कहा और उसने कहा कि वह अकेले सवारी करना चाहता है। उसके बाद वो घोड़े को चला करके रख देते हैं और अगले दिन प्रातः सारी दुनिया जग गई थी। अब दोनों के सामने एक नया प्रश्न था, घोड़ा को छिपाने का, और मुराद छिपाने का स्थान जानता था। आरम ने पुनः उससे पूछा कि घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया था? मुराद ने समझाया कि थोड़ा सा झूठ बोल लेना तथा कहना हम लोग जो आज प्रातःकाल सवारी पर निकले थे वह घोड़ा हम लोगों का था। परंतु अंत में इस कहानी में यह हुआ कि
घोड़े को खलिहान के पास बाहर बांध करके रखा जाता था। वो दोनों घोड़े का आनंद लेते रहे और अंत में इस कहानी में ब्रायो नाम का व्यक्ति, जॉन ब्रायो नाम का व्यक्ति है, उसी का घोड़ा था, उसे घोड़े को लौटा दिया जाता है और इस बात की खुशी वह आरम की मां से जाकर के व्यक्त करता है। घोड़ा पहले से मजबूत, बेहतर स्वभाव का हो गया था। उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि उसका खोया हुआ घोड़ा मिल गया। और अंकल खुसरो फिर से वही बात दोहराए, वो चिढ़कर चिल्लाए, बकवास बंद करो। और इस प्रकार यह कहानी की समाप्ति।